Welcome back once again, myself Pransu Kumar Pathak, and in this particular session, dear guys, we will understand how to choose a good professional in life. Because each and every one of you is going to crack JRF. After JRF, what you will do? How will you find a good professional for your career? And for each and every research scholar, and for being as a researchers, we must have to look about the impact factors. What is impact factor? What is RG score? But RG score, I don't mind if you have a high H index. That is very important factor for any institution, any journal basically, or any other scientist. So H index is really very important factor on which you can decide about that person. But I am truly speaking, these all things are basically dependent on each other. How these things can be calculated and how we can choose a good guide, this video may be very helpful for you guys. So stay tuned with me, myself Pransu Kumar Pathak. So before starting, I just want to go with some history, and this person is really very important person for you all guys. This is E. Garfield. So he is basically a linguistic businessman from America. This is he is the founder person for Institute for Scientific and Information, that is known as ISI, in Philadelphia 1956. So ISI क्या करता है? ISI is basically important to maintain the journals, and these all journals having good impact factors, and these all things very important. So one of the very important thing that is called citation, and how citation is important, and how citation is really very important when you are doing basic research. So हम लोगों को लगता है ना कि बहुत अप्लाइड रिसर्च करेंगे, बहुत ऐसे करेंगे. Basic research is always be very important. Basic research is a base of any research or for applied research. So applied research कहीं ना कहीं basic research से कनेक्ट होता है. उसे हम आपको सब्सिक्वेंट क्लासेस में समझाएंगे और आपको समझने की जरूरत है. ओके, चलिए. तो सबसे पहले ISI ऑफर क्या करता है? ISI आपको ऑफर करता है साइंटोमेट्रिक एंड बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, और ये दोनों बेसिकली साइटेशन इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं. व्हाट इज साइटेशन एंड व्हाट इज साइटेशन इंडेक्स, we will know together. Okay, so start. So this database allow researchers to identify which article have been cited most frequently and who cited them. So this जो भी ये सारी डेटाबेसेज हैं वो क्या करते हैं, ये आर्टिकल्स आपको एक साथ पढ़ना है, ठीक है. which article have been cited most frequently and have cited them. So उनको कौन साइट कर रहा है, कितना वो साइट हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. अगर कोई इंपॉर्टेंट, समझो कि कोई बेसिक रिसर्च है, तो किसी एक ने बेस बना दिया, अब उसको बार बार लोग साइट करें. क्यों? क्योंकि वो बेसिक रिसर्च है. बेसिक रिसर्च इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन ए वेरी अप्लाइड रिसर्च. सो बेसिक रिसर्च आपको हमेशा नोबेल दे सकता है, नोबेल लॉरेट बना सकता है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है. ठीक है, तो ये सारी बातें आपको, इन्फॉर्मेशन आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना है. कम टू द ISI also published an annual general citation report. So this report, which basically track the impact factor of all verified journals. Okay, so these all journals is really very important for maintaining a research record. Okay, so the first and very important thing that is given by this E. Garfield, that is called impact factor. सो इम्पैक्ट फैक्टर जो देने वाले आप लोगों को हैं वो इन्हीं का एक सोच था. ही इज लिंग्विस्टिक बिजनेसमैन बेसिकली फ्रॉम अमेरिका. ओके, सो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? इम्पैक्ट फैक्टर बार बार आप जो साइटेशन होता है उसके बेसिस पर हम लोग एक इम्पैक्ट फैक्टर को निकालते हैं. बेसिकली लास्ट 2 ईयर जो जनरल की जो इम्पैक्ट्स होती हैं, कैसे पिछले 2 सालों में कैसे कोई जर्नल कैसे बिहेव कर रहा है, इनके बेसिस पर हम उसके इम्पैक्ट फैक्टर को देखते हैं. ठीक है, सो इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ ए जर्नल बेसिकली ऑफ एन एकेडमिक जर्नल और साइंटियोमेट्रिक इंडेक्स दैट रिफ्लेक्ट्स दैट द अर्ली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन दैट आर्टिकल दैट इज पब्लिश्ड in the 2 years in a given journal received.
अगर किसी जर्नल में कोई आपने पेपर को पब्लिश किया है तो वो कितना बार साइट हो रहा है 2 ईयर में, ये 2 ईयर उसके इम्पैक्ट फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस जर्नल के लिए। और आप कैसा रिसर्च करते हैं कि कितने लोग आपकी रिसर्च को साइट करते हैं, ये भी इम्पैक्ट फैक्टर को क्या करता है, बूस्टअप करता है। चलिए और ये भी बहुत करता है, जैसे आपको एक प्रॉक्सी देता है, हायर इम्पैक्ट फैक्टर ऑलवेज बी इन डिमांड बाई आप क्या चाहोगे, हायर इम्पैक्ट फैक्टर में आप हमेशा पेपर पब्लिश करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि लोग हायर इम्पैक्ट फैक्टर में साइटेशन ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, अगर ज़्यादा आपका अच्छा रिसर्च होगा तभी आप हायर इम्पैक्ट फैक्टर में उसे छाप पाओगे। ठीक है, तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइस। सो हायर इम्पैक्ट फैक्टर कैसे किसी भी जर्नल का बनता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम ये पढ़ लें बिब्लियोमेट्रिक्स क्या होता है और सेंसोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होते हैं। दोनों बेसिकली स्टैटिकल टूल्स हैं जिनको दिया गया, ये बेल्जियन ऑथर थे जिनका नाम है आपका पॉल पलेट। ओके, सो इन्हें फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन साइंस भी कहा जाता है। ये डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लाइब्रेरियन भी रह चुके हैं ये। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिब्लियोमेट्रिक इज स्टैटिकल टूल्स, है ना। और ये बेसिकली क्या करता है, ये एनालाइज करता है साइंटिफिक पब्लिकेशंस को। ठीक है, एक मेथड है जिसके बेसिस पर किसी भी साइंटिफिक पब्लिकेशन को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। सो एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा बोल रहा हूँ, साइटेशन, एंड साइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो अगर आपके पेपर को कोई साइट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपके पेपर का यूजफुलनेस ने क्या है, कम है। आपकी उस अगर आप कोई पेपर पब्लिश करते हो और उस पेपर पब्लिश हुआ उसको कोई साइट ही नहीं कर रहा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आप रिसर्च कितना भी कर लो, अगर वो साइट नहीं हो रही है, यानी पब्लिक डोमेन में वो किसी काम का नहीं है, वो कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करेगा, तो वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेंसोमेट्रिक। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। ओके, इसमें आप क्या करते हो, मेजर इशूज जो है रिसर्च इंक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ द रिसर्च ऑफ दैट एकेडमिक जर्नल, है ना, साइंटिफिक साइटेशंस एंड सच मेजर्स ऑफ इन द पॉलिसीज मैनेजमेंट कंटेक्स्ट। ओके, सो बेसिकली हमारा साइंस कहाँ कहाँ घूम रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इंफॉर्मेशन साइंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सोशल साइंसेस में, है ना, और भी जो भी इकोनॉमिक्स है, सारी चीज़ों को ले करके एक पब्लिश किया जाता है। तो ये जो पूरा जो व्यू अप है इसे हम कहते हैं सेंसोमेट्री। ओके, इज ए फील्ड टू स्टडी which concern itself it measuring the analysis of scientific literature। so ये दोनों बातें साइंटिफिक लिटरेचर के साइटेशन पे डिपेंड करती है और वो कितना साइट हो रहा है इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए तो अब हम जाने कि इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है नेचर का इम्पैक्ट फैक्टर 2017 में 41.57 था। कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, अब देखिए 2017 में जितने उसके इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 साल का पब्लिकेशंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, कि उस जर्नल में 2 साल में, पिछले 2 साल में कितने पब्लिकेशन पब्लिश हो रहे हैं। ओके, सो यू कैन सी द पब्लिकेशन इन 2016 एंड 15 कलेक्टिवली एंड नंबर ऑफ साइटेशन इन 2017। 17 में कितने ज़्यादा साइटेशन हुए हैं वो आप ऊपर में रखोगे और उसे डिवाइड करोगे नंबर ऑफ पब्लिकेशन प्रेजेंटिंग 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। सो 17 का निकालना तो आप 15-16 लोगे, तो 15-16 में नेचर में इतने पेपर पब्लिश हुए। ओके, सो बाय दिस एंड बाय टोटल साइटेशन whenever you will just divide it, then it will give rise to a numerical value. That numerical value is termed as impact factor. So basically what is the main impact? What is the impact factor of any journal? So citation is very important. So आप अगर कोई बेसिक रिसर्च करते हो तो क्या होगा, अगर आप कोई फंड लेने जा रहे हो, कोई पब्लिकेशन आपका अगर कम इम्पैक्ट फैक्टर में है तो आपको प्रोजेक्ट जब आप लिखोगे तो आपकी प्रोजेक्ट पास होने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो पब्लिकेशंस हैं वो कम इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स में है। अगर वो हायर ऑर्डर के इम्पैक्ट फैक्टर में है, इसका मतलब क्या है
कि उनकी पब्लिकेशंस ज़्यादा है। बट ये इम्पैक्ट फैक्टर जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जब इसकी एनालिसिस कभी कभी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। हाई इम्पैक्ट फैक्टर कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऐसा पेपर आया, ठीक है, कोई एक ऐसा पेपर आया नेचर प्लांट में, समझो कि नेचर के में एक ऐसा पेपर है जो सबसे ज़्यादा साइट हो गया रिलेटिवली ऑल अदर पेपर्स इन दैट ईयर्स। ओके, सो क्या होगा, ये तो एक एक्चुअल फिगर नहीं मिलेगा ना। तो ये इम्पैक्ट फैक्टर इज नॉट अ very important tool to understand a scientific personal and scientific behavior of that particular scientist. So ये क्योंकि और किसी जनरल के भी इम्पैक्ट फैक्टर इससे डिसाइड तो हो जाते हैं, मगर ये कहना एक बहुत अच्छा पैरामीटर्स नहीं है कि वो कितना एक्टिव साइंटिस्ट का फील्ड है, वो कितना एक्टिव जनरल है, वो कितना एक्टिव साइंटिफिक ग्रुप है। तो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एच इंडेक्स, जिसे हम अपकमिंग स्लाइड्स में आपको समझाएंगे कि व्हाट इज एच इंडेक्स एंड हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो इम्पैक्ट फैक्टर की कहानी आपको शायद समझ में आ गई हो। इम्पैक्ट फैक्टर हम 2 कंसेक्यूटिव ईयर को लेकर चलते हैं, कितने साइटेशंस हुए दैट पर्टिकुलर इन ईयर्स एंड पब्लिकेशन पिछले 2 सालों में कितने आया। जब आप इसका रेशियो लोगे और जो आउटपुट आपको मिलेगा दैट आउटपुट इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट फैक्टर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज और, कोई भी जर्नल में जब आप पब्लिश करने के लिए जा रहे हैं तो आप उसे देख लो कि वो जो पर्टिकुलर जर्नल है जिसमें हम अपना पब्लिकेशन देने जा रहे हैं, वेदर इट इज वेरीफाइड, वेदर इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, और our if you are in India, if UGC is recognizing that journal or not. It is really very important for all of you because without हर साल क्या होता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडेक्स क्या करता है कि हर जनरल का लिस्ट निकालता है कि जो कि उनसे टाई अप किए हुए रहते हैं, उनसे इंटीग्रेटेड होते हैं। तो वैसे जनरल में आप पेपर में पब्लिश करो जिसकी वैल्यू क्या हो, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, तो वैसे जर्नल्स में आपको क्या करना है, पेपर पब्लिश नहीं करना है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू कैलकुलेट impact factor. And impact factor is not very important tools to know about that particular scientist. So साइंटिस्ट को कैसे जानेंगे, साइंटिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये ऑल अबाउट था इम्पैक्ट फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इम्पैक्ट फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टिकुलर students के लिए, because if you are going to publish a paper into a very low impact factor journal, then your value is really very drastically reduced. So try to publish your paper in high impact journal because high impact factor journal always be appreciated for your project financial problems. जब आप कोई प्रोजेक्ट लिखोगे तो आपके सबसे पहले यही देखा जाएगा कि आपने कौन कौन से जर्नल में अपने पेपर पब्लिश किए हैं। अगर आपके पेपर पब्लिश जो हुए वो बहुत लो इम्पैक्ट फैक्टर में है तो उसकी कोई मतलब नहीं रह जाती है। सो आप होप यू ऑल विल बी you all will do endeavor job in your PhD work. So thank you so much for watching this part. We will see you soon into the next part. तब तक के लिए take care. See you soon into the next video. Okay, bye, take care. We'll see you soon into the next video.